Good afternoon, students. Today we are going to study about life process from biology. So, let us know what the life process. Life means जीवन, प्रोसेस मीन्स प्रक्रियाएं. इस चैप्टर में हम वो सभी लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे जो जीवित रहने के लिए या जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं. सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन को रीड करेंगे. बेसिक फंक्शन performed by living organisms for their survival and body maintenance are called life process. Nutrition, respiration, transportation, excretion, growth and reproduction are different life process. Another definition is all the process which are necessary to maintain life in an organism are called life process. Now we study about the different type of life process: movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion, nutrition, transportation. In this chapter we study all these life process. Firstly, we start nutrition. Nutrition means पोषण. पोषण हमें अपने भोजन से मिलता है. फल, सब्जी हम जो भी खाते हैं या ग्रहण करते हैं उससे हमें पोषण मिलता है. The process in which an organism takes in food, utilize it to get energy. कोई भी ऑर्गेनिज्म जब भोजन लेता है तो वह भोजन इसीलिए लेता है क्योंकि उसे ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा उसे उसकी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है. और उसकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो मटेरियल उसकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. एक्सक्रीट हो जाता है मतलब बॉडी से बाहर निकलता है. फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन. नाउ वी स्टडी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, tropic means relating to nutrition. Now come to the definition. If an organism can nourish itself by making its own food, अगर कोई जीव या कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है सनलाइट के द्वारा तो वह ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. अनदर टॉपिक इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: फोटोऑटोट्रॉप्स एंड कीमोऑटोट्रॉप्स. फोटो मीन्स लाइट. प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर फूड. इट इंक्लूड process of photosynthesis. Another one is chemoautotrophs. Autotrophs that perform chemosynthesis. Chemosynthesis it mean chemical. Chemo means chemical. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सनलाइट का यूज़ ना कर जो केमिकल्स नेचर में प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं. I mean to say that chemical which are present in our surrounding or it's a natural process. For example, in this process
in which milk is converted into curd. Lactose sugar present in the milk. You all know that lactose sugar present in the milk is converted into lactic acid by lactic acid bacteria. जो कि लैक्टोज शुगर जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया के थ्रू, और वो बैक्टीरिया जो होता है कन्वर्ट होने के बाद जो बनता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड with the help of water and CO2 in the presence of sunlight and chlorophyll. ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से. किसकी उपस्थिति होती है? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. First, during this process, the solar energy converted into chemical energy and carbohydrate are formed. जो सोलर एनर्जी होती है, जो सन से मिल रही है लाइट, या लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और प्लांट्स अपने फूड को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाते हैं एज अ सिंपल ग्लूकोज. Green leaves are the main site of photosynthesis because in the green leaves there are small pores are present which can be trap sunlight easily. Chloroplast in the leaf contain chlorophyll, that is the green pigment, or because the reason we can see the color of leaf is green. The whole process of photosynthesis can be shown by the following equation. C6CO2 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. It means 6 molecule of carbon dioxide, 12 molecules of water can be prepared food in the presence of sunlight and chlorophyll and get the product glucose C6H12O6. 6O2 plus 6H2O are the byproduct of the process of photosynthesis. Now the following events occur during this process. First, absorption of light energy बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है. कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट का मीनिंग होता है ब्रेक. स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है. रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है. अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफ. Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. ये जो स्मॉल पोर्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं, CO2 एक्सेप्ट करती हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करती हैं. कौन? स्टोमेटा. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट, ये जानना ज़रूरी है, exchange of gases occur across the surface of stem, roots and leaves as well. प्लांट के जो अनादर पार्ट्स हैं, स्टेम, रूट्स, इनसे भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं.
since large amount of water can also be lost through stomata. जब प्लांट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर पानी होता है या एक्सेस वाटर प्लांट में होता है या प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट की बॉडी जो एक्सेस वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट की बॉडी में है, वो स्टोमेटा के थ्रू लॉस कर देते हैं, बाहर निकालते हैं, और उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. द प्लांट क्लोजेस दिस पोर व्हेन इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपने जो स्मॉल पोर्स है, स्टोमेटा जो है, उनको क्लोज कर देता है जब उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की ज़रूरत नहीं होती. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल. स्टोमेटा में गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने का काम करती हैं. द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम. जब पानी गार्ड सेल के अंदर जाता है तो वो स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन. सिमिलरली टू पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक. जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं, जब वो क्लोज होती हैं, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती या उसमें वाटर फ्लो नहीं होता, तो वो गार्ड सेल जो हो जाती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं. यहाँ पर ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर का डायग्राम आप देख रहे हैं, जिससे आप स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Thank you. Have a nice day.